let us start with 45 days strategy for NEET. And now as we know that NEET cannot be held on 1st August, it is not possible. तो पोस्टपोन तो होना ही है. एंड अगर हम पास्ट ईयर्स के बेसिस पे देखें तो व्हेन एप्लीकेशन फॉर्म्स आर रिलीज्ड, लाइक फ्रॉम दैट डेट यू गेट मिनिमम 2 months. So if we assume that we are getting 60 days from now, but still we have to prepare according to 45 days because the situation different है, तो गवर्नमेंट कुछ भी डिसीजन ले सकती है. तो अगर हमें 60 डेज से कम लाइक 45 डेज़ तो मिलेंगे ही, उतने भी मिलते हैं तो हमारा सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए. एंड अगर हमें एक्स्ट्रा 15 डेज़ मिलेंगे तो हम उसमें रिविज़न ज़्यादा करेंगे, टेस्ट ज़्यादा करेंगे. सो वो हमारे लिए एक एक्स्ट्रा पॉइंट हो जाएगा. सो अब हमें अपना सिलेबस पूरा 45 डेज़ में कंप्लीट करना है विद रिविज़न. सो नीट में आपके टोटल नंबर ऑफ़ चैप्टर्स हैं 97, इंक्लूडिंग फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. उसमें से 12th स्टैंडर्ड में आपके 50 चैप्टर्स हैं एंड 11th में 47 चैप्टर्स हैं. अब हमें ये 97 चैप्टर्स 45 डेज़ में कंप्लीट करने हैं. वी हैव टू कंप्लीट दीज चैप्टर्स इन 45 डेज़. सो अगर हम कैलकुलेट करें, सो नंबर ऑफ चैप्टर्स वी हैव टू कंप्लीट पर डे इंक्लूडिंग एवरीथिंग लाइक थियोरी एंड क्वेश्चंस, दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 2.5 चैप्टर्स पर डे. तो आपको पर डे इतने चैप्टर्स करने होंगे. बट इसमें थोड़ा चेंज है क्योंकि अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स देखो, सो देयर आर 7 चैप्टर्स इन योर सिलेबस. सो नाउ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हमें 7 चैप्टर्स करने हैं. सो नाउ अगर अब हम इन 7 चैप्टर्स को एक बार अलग कर लेते हैं, सो वी आर लेफ्ट विद 90 चैप्टर्स. दैट these 90 chapters have to be completed within these 45 days. And now so according to this you are left with 2 chapters each day that you have to complete, like the theory with revision, with questions and everything. So you can do like each day you can select 2 subjects, one biology chapter and one physics or chemistry chapter. You can also alternate between the two, like one day you did one biology and one physics and the other day you did one biology and one chemistry. So like this. बट अब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे करेंगे? जो हमने 7 चैप्टर्स अलग करे हैं, ये क्यों करे हैं? सो एज वी कम टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट dreaded parts, I know. And these 7 chapters that I just told you, these are the main chapters of inorganic chemistry. These does not include chapters like biomolecules, because you can complete these chapters in a single day. So inorganic chemistry you have to do each day. Like each day you have to study inorganic chemistry in 3 slots, and each slot will be of 30 minutes. For first slot you can read the theory, second slot again you can read the theory, and I prefer and I recommend using only NCERT. And the most important slot is the 3rd slot. The 3rd slot is for revision of the first as well as the second slot. You should do it at the end of the day before going to bed, so that you can remember whatever you have studied the entire day. And don't forget to do it because it is very important slot. If you don't do this, आपको कुछ याद नहीं रहेगा. मतलब बहुत कम probability है कि आपको याद रहे, and तो जो आपने पूरे दिन जो भी पढ़ा है उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा. So please do this. So now to conclude, for inorganic chemistry, like the main chapters I already told you, that are hydrogen S block, P block of 11th and 12th, surface chemistry, metallurgy and DNF block. Yeah, these are the 7 chapters. You have 45 days for these 7 chapters. So according to this you have 6 days per chapter. Approximately you have 6 days per chapter. And I think if you use this strategy, you go by this plan, I think you will be able to complete these chapters, and you will also be able to retain what you have read for a longer time. So now let's discuss about some important points before moving any further. So about the level of questions, अगर हम देखें especially
2019 टू 2021 के अगर हम एग्ज़ाम्स देखें, जब से एनटीए ने एग्ज़ाम्स लेने शुरू करे हैं, सो एनटीए जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट करा रहा है, दे कंटेन मोस्टली एनसीईआरटी लेवल क्वेश्चंस, लाइक बेसिक क्वेश्चंस. यू जस्ट नीड प्रैक्टिस. सो आई विल सजेस्ट डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन वेरी हाई लेवल क्वेश्चंस, लाइक जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, दे कैन डू एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस. लाइक it is actually good if you practice different level of questions, but अगर आपकी preparation अच्छी नहीं है, so you should not indulge in very high level questions. And also you should do 100 questions per chapter minimum plus previous year questions. Now this is the most important thing for any competitive exam. Previous year questions are a must. You should not leave them. कभी कभी same questions भी आ जाते हैं या questions mostly उसी line पे based होते हैं, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है करना. सो नाउ नेक्स्ट थिंग दैट यू विल सी आर द शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूला शीट. ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंड इफ़ यू हैव ऑलरेडी मेड देम देन इट्स अमेजिंग. लाइक ये बहुत हेल्प करते हैं आपको फाइनल डेज़ में, आपको ये रिविज़न में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे. फॉर्मूला शीट तो आपके पास फ़िज़िक्स एंड फिज़िकल केमिस्ट्री की हर चैप्टर की होनी ही चाहिए, बिकॉज़ आपको सारे फॉर्मूले लर्न करने हैं. आप फॉर्मूले लीव कर ही नहीं सकते. यू हैव टू लर्न ऑल द फॉर्मूले, बिकॉज इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में. लाइक अप्रॉक्सीमेटली नीट में तो 85% क्वेश्चंस अगर आप देखो तो डायरेक्टली सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड होते हैं. आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है और कैसे करना है. वो आपको प्रैक्टिस से आएगा क्वेश्चंस की. So now moving on to the time based question practice और tests. Like tests तो बहुत बच्चे छोड़ ही देते हैं, but ये बहुत important है अगर आपको अच्छा स्कोर करना है एग्ज़ाम में. तो like in your final exam also you have to do 180 questions in 180 minutes. So you have to practice based on that. Like आप ऐसा कर लो, alternate days टाइम बेस्ड प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की. लाइक 1 घंटा बैठो, यू हैव टू डू 60 क्वेश्चंस इन 60 मिनट्स. लाइक मंडे कर लो, फिर ये प्रैक्टिस वेंसडे कर लो, ऐसे ऑल्टरनेट डेज पे करो, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा. एंड यू विल सी दैट ग्रेजुअली आपका स्कोर इंक्रीज भी होगा. नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको ये जो आप टाइम बेस्ड प्रैक्टिस करोगे या कोई भी टेस्ट लोगे, वो आपको OMR शीट पे लेना है, बिकॉज आपका एक्चुअल एग्ज़ाम पेन पेपर मोड पे ही होगा, OMR शीट पे ही होगा. तो OMR शीट पे प्रैक्टिस करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि आप मार्किंग गलत कर देते हो, जो कि बहुत मतलब आपको बहुत रिग्रेट होगा अगर ऐसा हुआ. तो आपको OMR शीट पे भी प्रैक्टिस होनी चाहिए. नाउ लेट्स कम टू एनालिसिस ऑफ टेस्ट. ये मैंने भी मिस्टेक करी थी, एंड ये बहुत लोग मिस्टेक करते हैं कि हम टेस्ट दे देते हैं बट उसकी एनालिसिस नहीं करते. बट ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि अगर आप टेस्ट दे रहे हो उसके बाद आप एनालाइज ही नहीं कर रहे कि आपने कहाँ गलती करी है, या आपको क्या नहीं आता, या आपको क्या ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि आप किस चीज़ पे वर्क करो. जब आप एनालाइज करोगे आपको पता चलेगा कि आपने कहाँ मिस्टेक करी है, तो आप उस कॉन्सेप्ट को या उस क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करोगे, तो फाइनल एग्ज़ाम में जो आपके लिए मैटर करता है उसमें गलती होने के कम चांसेस होंगे. सो नाउ एट लास्ट लेट्स कम टू रिविज़न, या आपको टेस्ट्स कब कब लेने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. अब डेली रिविजन की बात करें तो वो तो आपको करनी है. लाइक आपने पूरे दिन में क्या पढ़ा है उसका एक बार ओवरव्यू एट द एंड ऑफ द डे ले लो, ताकि आप वो याद रख पाओ. नाउ एट द एंड ऑफ एवरी वीक आपने जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं पूरे वीक में, लाइक यू हैव टू डू रिविजन ऑफ ऑल द चैप्टर्स दैट यू हैव रेड द एंटायर वीक. उससे आपको बल्क में रिटेन करने की आदत होगी, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में तो फुल सिलेबस आना है ना. एंड अब आपको ये रिवीजन कैसे करनी है, अब आप फिर से सब कुछ रीड तो कर ही नहीं सकते एक ही दिन में. सो आपको ये रिवीजन करनी है शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूला शीट, जो मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब 45 डेज़ में आप बार बार रिवाइज़ नहीं कर सकते, बार बार पढ़ नहीं सकते, आपके पास बहुत कम टाइम है. तो आपको ये रिवीजन शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूला शीट से करनी है. बाकी सब तो आप उस पूरे वीक में अच्छे से पढ़ ही रहे हो, क्वेश्चंस कर ही रहे हो. सो आपको बस ये वाली रिवीजन करनी है. सो नाउ टेस्ट की जो बात है, अब आपको टेस्ट कब कब लेना है. आपको एक 3 आवर का टेस्ट, क्योंकि आपका मेन एग्ज़ाम भी 3 आवर्स का होता है, तो आपको प्रिपेयर्ड रहना है. 3 आवर का टेस्ट OMR शीट पे
अच्छे से आपको देना है आफ्टर कंप्लीटिंग 5 चैप्टर्स। जब भी आप 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर लेते हो एंड अकॉर्डिंग टू दिस आपके 3 दिन में 6 चैप्टर्स हो जाने चाहिए, है ना। तो उसी थर्ड डे आपको एक टेस्ट लेना है। आफ्टर कंप्लीटिंग एवरी 5 चैप्टर्स यू हैव टू टेक अ 3 आवर टेस्ट। उससे आपको पता चल जाएगा कि आपके वो चैप्टर्स अच्छे से हो गए हैं। और टेस्ट जब आप लेते हो तो आपकी एक तरीके से रिविजन भी हो जाती है, और एंड ऑफ द वीक भी आप रिविजन कर रहे हो, टेस्ट के फॉर्म में भी आप रिवीजन कर रहे हो, तो आपको ये सब कुछ आपको हेल्प करेगा रिटेन करने में। और अगर आपको 45 डेज़ के बाद भी टाइम मिलता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी है, तो आपको उन जो आपको 15 डेज़ अगर हम लेके चलते हैं और मिलेंगे, तो उसमें आपको रिवीजन करनी है। और जो 15 डेज़ मिलेंगे उसमें हमें बहुत सारे टेस्ट हम फिर से लेंगे, लाइक ईच डे आप लगा के चलो। इसके बाद ईच डे जब आपका 45 डेज़ में सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो इसके बाद अगर आपको टाइम मिला तो आपको ईच डे 2 फुल सिलेबस टेस्ट लेने हैं, और उनको उसी दिन उनकी एनालिसिस करनी है, और जहाँ पे गलती है उसको दोबारा रीड करना है या उसको दोबारा प्रैक्टिस करना है। सो नाउ इफ़ आप चाहते हो तो आप इस पूरे प्लान का स्क्रीनशॉट ले सकते हो स्टार्टिंग से। एंड अगर आपकी प्रिपरेशन एवरेज चल रही है तो आप इसे एक बार ट्राई कर सकते हो, इससे आपका स्कोर डेफिनेटली इम्प्रूव होगा। सो या दिस वॉज ऑल फॉर द वीडियो।